while invoking the blessings of Goddess of Learning. I cordially invite our principal ma'am. Good morning to one and all present over here, respected dignitaries on the dais, faculty members and my dear students. It is my honor to welcome you all on the celebration of National Youth Day at Infinity Management and Engineering College. This occasion is not just a commemoration of Swami Vivekananda's birth anniversary, but a moment to reflect on the invaluable contribution of the youth to the society. The theme of today's program is cyber crimes through mobile devices, threats, prevention and legal implications. It is both relevant and critical in the digital era. With technology empowering our lives, it has also exposed us to numerous challenges, particularly in the case of cybersecurity. Our aim today is to empower our youth to recognize the potential threats posed by mobile cybercrimes, understand the ways to prevent them, and be aware of the legal frameworks in place to address such issues. As the torch bearers of tomorrow, it is essential for our students to stay vigilant, informed, and proactive in safeguarding themselves and their communities. With the guidance of our keynote speaker, Mr. Devnar Singh Chauhan, an esteemed cyber expert, and the dedicated efforts of our faculty members, we aspire to inspire meaningful discussions and provide actionable insights to everyone present today. Let us take this opportunity to not only celebrate the spirit of youth, but also to channel it towards building a safe and secure digital world. Together, let us pledge to uphold the values of Swami Vivekananda, dedication, discipline and service to society. Thank you, and I wish you all an enriching session ahead. Thank you so much. He currently serves as an IT consultant at IT Infotech Private Limited and a cyber expert at Sargent Company. Mr. Chauhan is renowned expert in cyber security. Today, he will be delivering a highly informative lecture on cybercrime through mobile device, its threats, preventions and legal implications. I am confident that his insight will be invaluable to all of us, especially in this digital age. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Devnar Singh Chauhan as he takes the stage. Thank you. Thank you, Principal Ma'am, College Management, and thank you to entire students. सुबह सुबह इतनी कड़ाके की ठंड में मेरे को सुनने के लिए आ रहे हैं। आई डोंट नो खुशी से आए हैं, जबरदस्ती आए हैं, लेकिन आई ट्राई कि आप जितनी देर के लिए यहाँ आए हैं ये सेशन कुछ इम्पोर्टेंट हो, कुछ रिजल्ट्स मिले, फ्रूटफुल हो। तो जब मैं सुबह 6 बजे भोपाल से निकला था तो मेरे को लग रहा था पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा टाइम से, क्या होगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन। सो इसका रिपोर्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। हम लोग अभी कलयुग में अभी तक अपन किसी ऐसे बड़े से राक्षस, रावण टाइप, कंस टाइप ऐसा अभी तक नाम कोई सुना नहीं है। अलग अलग युगों में अलग अलग टाइप के आते रहे, अभी नहीं है ना कोई, ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं। पहले एक एक होते थे, अभी मल्टीपल है और सुबह शाम हम इनसे डील कर रहे हैं। सुबह शाम ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मतलब कभी कभी, क्योंकि मैं जहाँ सेशन लेने जाता हूँ मैं वहाँ अपना नंबर जरूर छोड़ के आ जाता हूँ, साहब ये मेरा नंबर है, कभी आपके साथ परेशानी हो प्लीज आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर ले या व्हाट्सएप डाल दे, मैं खुद कॉल बैक करूंगा आपको। तो होता यह है कि एक आदमी ने मुझे वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके दिखाया कि सर ये देखिए मेरा घर है सर, और मेरे अकाउंट से सर 70,000 रुपए निकल गए थे। तो वो बेचारा एक लोहे के शेड में रहता था और वहां उसके अकाउंट से 70,000 रुपए निकल गए।
मतलब थैंक यू टू आवर करंट गवर्नमेंट जिन्होंने सबके कह दिया कि ऑनलाइन अकाउंट बना दिया हमने। गवर्नमेंट टेक्स द क्रेडिट कि हमने गरीबों के अकाउंट बना दिए। पहले क्या होता था, गरीब पैसा अपने घर में तकिए के नीचे छुपा के सोता था, तो चोरी तब भी होती होगी, लेकिन अभी क्या हो गया कि वो डिजिटल फॉर्म में आ गया। सो हमने बैंक अकाउंट तो खुलवा दी, लेकिन हमने उन्हें लिटरेट नहीं किया। तो ऑल्दो मैं ये मानता हूं कि आप लिटरेट हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या ये आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सारी बातें क्लियर होंगी। और मेरा आज का सेशन का पर्पस है कि आप कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी कोशिश करें कि 5-10 लोगों को आप ट्रेन करें इसके लिए, ताकि हमने बहुत सारे लोगों को बचा दिया। सो अभी लास्ट ईयर सिर्फ हाउस अरेस्ट के तो अभी फिगर पब्लिश नहीं हुए कि हाउस अरेस्ट में कितना पैसा गया है, लेकिन ये जो लोगों को किसी तरीके से लूट लेते हैं या क्या, आप समझ रहे हैं, अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड्स हैं। 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ हमारे क्वार्टर वन मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर वन है, उसमें इतना पैसा देश से बाहर निकल गया। सिर्फ एक क्वार्टर वन मतलब 3 महीने में। सो अप्रैल मई जून 25,000 करोड़ बाहर निकल गया। तो आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है जो बाहर जा रहा है। ये गवर्नमेंट की फिगर्स है। जो अनऑफिशियल फिगर्स है, दे सेज कि एवरी ईयर 2 लाख करोड़ का अमाउंट हमारे देश से बाहर निकल जाता है। हमारा जो रक्षा बजट है, जो डिफेंस का बजट है, वो लगभग 3.5 लाख करोड़ का है। आप समझ रहे हो, जो डिफेंस का बजट है उससे आधा पैसा बाहर निकल जाए। तो साइबर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक एंगल बताया कि फाइनेंस वाला एंगल है। दूसरा एंगल क्या है कि कितने सारे लोग हैं जिनका डेटा पब्लिक हो जाता है और बहुत सारे लड़कियां या बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फिगर है, और उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां रिपोर्ट नहीं करती हैं। तो सबसे बड़ा वो जो रावण बैठा है ना, वो ये बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं ना, सब कुछ इसी में है, सारी इंफॉर्मेशन। ओके, सो मतलब मैं इजराइल के लिए काम करता हूँ। इजराइल इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर साइबर। तो वहाँ पे हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं चेक पॉइंट के साथ। तो साइबर में बहुत सारा काम किया हुआ। वो IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा। आप जितना चाहें आप इस टॉपिक में डेप्थ में जाएं, जो आपको मेरी हेल्प चाहिए वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं हमें हमेशा अवेलेबल, व्हाट्सएप पे नंबर भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, 2 साल से चल रहा होगा। अभी कैसा हो रहा है कि आप देख रहे हो कि वॉर ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा कि भाई ये बिल्कुल मरने मारने पे आ गए, वो मरने मारने पे आ गए, ऐसा नहीं चल रहा है। दूर से ये मिसाइलें फेंक रहा है, दूर से वही मिसाइलें फेंक रहा है। कभी कुछ 10-12 सोल्जर मर जाते हैं हफ्ते में, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं मर रहा है। लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अभी फाइनेंशियली डैमेज कर रहे हैं। सो ये गया क्या, आवाज आ रही है? अच्छा। सो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को फाइनेंशियली डैमेज कर रहे हैं, और उसका बड़ा जो रोल है वो साइबर है। साइबर अभी कितना क्लोज है, कितनी ज्यादा लेवल की मॉनिटरिंग है। आप सामने वाली मूवी देखी कमांड, तो साइबर स्पेस में वॉर चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। अभी अगर आपके पास कोई एक्सेस हो तो इतनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिलती है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर। हाँ, अभी है ये। तो रशिया यूक्रेन हुआ, इजराइल पैलेस्टीन हुआ। अभी इसमें मेजर जो यूज है वो किसका है? साइबर। अभी हमें ट्रैक करना है कि कौन क्या कर रहा है। अभी हमने इजराइल ने अटैक किया, एक कैसा अटैक किया? नहीं, सब बहुत पुरानी बातें हैं। इजराइल ने क्या किया कि जो गाजा के मिलिटेंट्स नहीं गाजा नहीं, वो दूसरा एक और, तो वो लोग जो मोबाइल जो पेजर डिवाइसेस यूज कर रहे थे, पेजर डिवाइसेस में ब्लास्ट कर दिया। एक साथ 3000 पेजर ब्लास्ट किए। तो मैं मोबाइल हमेशा जेब में रखता हूं ना, तो
तो बहुत सारे लोग का नीचे के पार्ट उड़ गए, बहुत सारे लोग जो ऊपर रखते हैं उनके ऊपर के पार्ट उड़ गए। सो दिस इज टेक्नोलॉजी, सो दिस इज टेक्नोलॉजी, यू नेवर नो। मतलब मैं उसके बाद से क्या था, वो जो पेजर था उस पेजर में 4 ग्राम का RDX था, हर पेजर में कंपनी से फिट होके आया था 4 ग्राम का RDX। उस दिन से मैं डरने लगा कि इसमें 4 ग्राम RDX तो क्या होगा। अभी कल एक शो देख रहा था, कल परसों सुदीप चौधरी का शो आ रहा था, तो वो उसमें बता रहे थे कि जो स्मार्ट कार आ रही है, जो स्मार्ट कार आ रही है, वो स्मार्ट कार में क्या हो रहा है, कौन कौन खेल रहा भाई। सो वो जो स्मार्ट कार आ रही है, वो स्मार्ट कार में क्या होगा, अभी तो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन थी इसके थ्रू। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं इसके सामने, आपने सबने देख लिया होगा, तो बहुत पुराना कॉमन सा टॉपिक हो गया है कि अपन बात कर रहे हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट पैसा आ रहा है। मतलब मान लीजिए कि एक कोई नया नया शादीशुदा जोड़ा है, इसको बगल में रख के बात कर रहा है, भाई सब सुन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब अपन उसको बोलेंगे हे एलेक्सा या हे सिरी या ओके गूगल, तब सुनेगा। बाकी टाइम तो बहुत ईमानदार कान बंद करके बैठा रहता है। अगर कान बंद करके बैठा रहेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमने ओके गूगल बोला। व्हाट डज दिस मीन? ये कंटिन्यूअसली लिसन कर रहा है। आप गूगल के पेजेस पे जाके पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ कि यस वी कंटिन्यूअसली लिसन टू योर डेटा, बाद में डिलीट कर देते हैं। Who knows? So आप सबसे ज्यादा डेटा तो इसी को दे रहे हो ना, तो अपन इसी से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन से नहीं चल रहा मैं, क्योंकि समय की कमी है। आप सबके पास स्मार्टफोन निकालो हाथ में, सेटिंग्स में जाना और सेटिंग्स में जाके वहां टाइप करना, सर्च करने का ऑप्शन है ऊपर एक, वहां पे टाइप करना PERM, परमिशन मैनेजर दिखेगा आपको। परमिशन मैनेजर, परमिशन मैनेजर मिलेगा, नहीं मिला तो मेरे को बताना, मैं रुक जाऊंगा। हो सकता है किसी किसी फोन पे परमिशंस के नाम से मिले, किसी फोन पे परमिशन मैनेजर के नाम से मिले, मिला। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। मेरा इस सेशन का पर्पस ये है कि मैं सिर्फ हाईलाइट करूं चीजों को, बाकी सब चीजें आप खुद करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें नीचे स्क्रॉल करके आओ, जरा SMS दिख रहा होगा। यस सर। नीचे SMS होगा, SMS मिला? यस सर। हाँ, तो अभी आप, क्या नाम है आपका? श्रद्धा पटेल। श्रद्धा पटेल। तो पटेल साहब ये बताओ, SMS बोला? यस सर। अब बताओ कि परमिशन किस किस को है, अलाउड क्या क्या है? एंड्रॉइड ऑटो, हाँ। गूगल, हाँ। क्रोम, मैसेजेस, यूनो। हाँ, आप बताओ। एंड्रॉइड ऑटो, पॉपल, गूगल प्ले और मैसेज, भी कोई फोन पे पॉपल से। और पूरा बताओ। बस। अच्छा, और कोई ऐसा जिसके में और ज्यादा हो? हाँ बताओ। एयरटेल पेमेंट, एयरटेल ऑटो, एक सेकंड, बाकी लोग चुप रहो, इनकी सुनेंगे सर। बोटप्रेस, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर, गूगल पे, ग्रो, लिंक टू विंडोज, मैसेज, माई यू, फोन, व्हाट्सएप, यू नेम। सो देखो, आप जब आज घर जाओगे तो आपका काम ये होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप ये परमिशन कंट्रोल करोगे, सबका काम ये होना चाहिए। अब आप समझना कि इन्होंने जितने नाम लिए, इनमें से इतने सारे लोगों को SMS की परमिशन हमने दे रखी है। इसका मतलब कि वो मेरे SMS को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं उनको क्यों परमिशन दे रहा हूं? SMS को एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब कि आप तो श्योर हो कि आपने ट्रांजैक्शन किया तो आपको OTP आएगा। मैं 2005 की कहानी बताता हूँ, पता नहीं आप लोगों ने कभी मेरा सेशन अटेंड किया क्या पहले?
नहीं। सो 2005 में लास्ट ईयर में शायद सुनाई मेरे को डाउट है। तो 2005 में मेरे एक फ्रेंड है, नाम नहीं लेता हूँ उसका, SBI में ही सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कब 2005 में। सो ही सेड कि रात में 9-10 बजे फोन किया तो फॉर श्योर थोड़ा प्रसाद ले लिया होगा और फिर उसने मेरे को फोन लगाया होगा। तो 9-10 बजे के बाद बोले हेमराज एक आइडिया है मेरे दिमाग में। मैंने कहा बोल तेरा SBI में अकाउंट है? मैंने कहा हाँ है। बोले तेरा अकाउंट या किसी भी अकाउंट में आपके बैंक में बैलेंस है 1000 रुपए बैलेंस है, हम उसमें पीछे से अगर 7-8 जीरो ऐड कर देते हैं वाया SQL क्वेरी, SQL पता है आप लोगों को? सो वाया SQL क्वेरी हम उसमें पीछे 7-8 जीरो ऐड कर देते हैं तो हमने डेटाबेस अपडेट कर दिया। अब ये पता चलेगा, ऑडिट में इंफॉर्मेशन होगी कि इस ब्रांच में इतना पैसा नहीं था जितना इस बंदे के अकाउंट में आ गया, लेकिन अभी तो ATM में तो पैसा दिख रहा है ना कितना पैसा आ गया। अब मैं धीरे धीरे करके रोज ATM से, मेरी लिमिट उस टाइम पे शायद 20,000 रुपए पर डे की थी, तो मैं रोज 20,000 रुपए पर डे करके निकालूंगा तो अगले 2-4-5 महीने में काफी सारा पैसा निकाल लूंगा। तो मैं कहता नमन तुम पागल हो गए, अपना जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है तो क्यों अपन ये सब करें। सो गेटिंग माय पॉइंट कि उसने मेरे से कहा सो क्या हुआ कि मैंने नमन से कहा, मैंने कहा भाई जीवन बहुत सुखी चल रहा है, अपन क्यों उसमें ऐसा करें। सो मैं क्या कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट SBI जिसका ये इंटेंशन है कि वो आपके SMS एक्सेस करके कुछ इंफॉर्मेशन निकालेगा। जैसे इसने कहा कि एयरटेल पेमेंट बैंक को एक्सेस है, क्यों एक्सेस है? बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो एक बार SMS भेज के वेरिफिकेशन करती तभी आपके फोन में इंस्टॉल होती है, इंस्टॉल हो गई उसके बाद उससे SMS की परमिशन वापस हटा दो। अमेज़न को परमिशन होगी किसी बहुत सारे लोगों के फोन में, फ्लिपकार्ट को परमिशन होगी बहुत सारे लोगों के फोन में, क्यों है? इसकी वजह से वो कह रहा है कि अमेज़न आपको खुद ही बता देता है, फ्लिपकार्ट खुद ही बता देता है, या पेटीएम फोन पे बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि भाई आपके क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, या आपकी बिजली का बिल ड्यू है, आपका टेलीफोन का बिल ड्यू है, तो नहीं देना है, किसी को परमिशन नहीं देना। हाँ कोई एप्लीकेशन आपको लगता है कि बैंक है आपका, SBI बिना SMS की परमिशन के मानेगा ही नहीं, वो चलेगा नहीं, तो उसको देना पड़ेगा। ICICI बैंक नहीं मांग रहा, तो ऐसी बहुत सारी जो फोन पे को नहीं देना, पेटीएम को नहीं देना, तो हम क्यों दे रहे हैं? तो अब हमें ध्यान नहीं रहता, हम ऐसा कर देते हैं। 2017 का एक और इंसिडेंट, मैंने 16 का कुछ बच्चे आए नेटवर्किंग पढ़ने, मैंने नेटवर्क पढ़ाया, उन्होंने मेरे को फीस दी और जाने लगे। उसके बाद बोलते हैं, मतलब हमारा जो भी 45 डेज का कोर्स था, फिर जाते आते बोलते ऐसे नहीं तो गुरु दक्षिणा टाइप का, क्या सर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा था, मजा आया आपसे पढ़ने का। तो मेरे को बोलते हैं जाते हुए कि सर बताइए अगर कभी कोई वोडाफोन का आपको OTP चाहिए होगा ना, हमें बताइएगा सर, हम आपको वोडाफोन, किसी के भी वोडाफोन को OTP दे देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज नॉट कंपनी, इट इज नॉट अमेज़न जो आपके SMS एक्सेस कर रहा है, इट इज द एम्प्लॉइज इन अमेज़न जो उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हैं। तो कितना डेंजरस है ये। तो मैंने वही कहा कि साइबर के लिए हमें फोन से थोड़ा बचना है। अभी आप कैसे करते हैं कि इसका एडवर्टीजमेंट कैसा होता है, 100 मेगापिक्सल कैमरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा। मेरे से अगर आप पूछोगे ना तो मैं इस फोन से अपनी फैमिली के फोटोग्राफ्स लेता ही नहीं। मेरे पास एक DSLR कैमरा है, 3,500-4,000 रुपए का आता है, मैं उससे फोटो लेता हूं। रीजन आपको नहीं पता, मतलब ये देखो कैसा है, ये आप बोलोगे अरे सर आप बेवकूफ पुरानी जैसी बातें कर रहे हैं, कैमरा लेके घूमो। मेरे पास, मैं दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहा था, मेरे पास कॉल आया, भोपाल की लड़की थी कोई, उसको पता नहीं कहां से कनेक्ट मिला, उसने मेरे को कहा फोन करके, मैं क्लास ले रहा था, बोले सर मेरे साथ बहुत ही अर्जेंसी है, मेरे को आपसे बात करनी, मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ। मैंने कहा मैं 5 बजे कॉल करूंगा आपको, तब बात करते हैं। सर मैं सुसाइड करने वाली हूँ। मैं कही क्या बोल रही है। मैंने फिर बात सुनी उसकी पूरी, तो उसने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ डेटा निकल गया और मेरे फोन में बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे जो पब्लिक हो गए, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करे लेकिन मेरे फोन में थे। तो मैंने कहा मैं एक
कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि मैं 5 बजे ही आपसे बात कर पाऊंगा। ठीक 5 बजे उसका फोन आ गया, तो मैंने क्लास को बोला मैं जाता हूँ, और मैं 5 बजे फोन पे बात करते हुए अपना सामान लपेट के चला गया। होटल पहुंचा, होटल में जाके मैंने बहुत कोशिश करी कि उसके फोन को समझूं कि डेटा गया कैसे। तो ये भी समझ लिया कि उसने साइबर पुलिस दिल्ली के पास कंप्लेंट की, बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट कर रखी थी उसने। तो कोई नॉर्वे की कंपनी है जिसने उसके फोन को हैक किया। अभी फोन हैकिंग इज वेरी इजी एक्चुअली, मतलब वो आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि आपका फोन हैक हुआ है। सो कल एक कोई भोपाल एकेडमी करके इंस्टीट्यूट है, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि सर हमारा एक यूट्यूब चैनल था, उसके ऊपर बड़े सारे 2.5 लाख व्यूअर्स थे, और उसके ऊपर वो अचानक से बिटकॉइन के वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं। मैंने कहा आपका पासवर्ड किसके पास? बोले सर इस पे 2M फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, OTP भी लगा हुआ है, उसके बाद नहीं चलेगा। कैसे चलेगा बताओ? क्योंकि फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है जो विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर नॉलेज आपके SMS एक्सेस करती है। तो आपको तो लग रहा है मैं तो 2 फैक्टर लगा के बैठा हूं। तो लड़की वाले केस में क्या हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं कर पाए। फिर मैंने कहा नहीं हो सकता आपका डेटा रिकवर। बोले सर मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। और रात को मैं 4-5 घंटे मैंने कोशिश की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। मैं कहा देखो आपको ये डर है जो फोटोग्राफ से पब्लिक हो जाएंगे। मैं कहा आप पहले पब्लिक करो, आप पहले फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, और आप पोस्ट करो कि आपके फोटोग्राफ्स किसी ने हैक कर लिए हैं, और आप बोलो कि मॉर्फ करके दोस फोटोग्राफ्स आर एक्चुअल, बट मैंने कहा आप बोलो को मॉर्फ करके कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई किसी का फोन आता है, फोटोग्राफ आता है, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, हम वो नंबर पुलिस में देंगे। अभी पहले मैंने बोला, पब्लिक मेरे साथ है। अगर ये उल्टा होता कि पब्लिक को पहले पता चल जाता, तो देखो अरे ये फोटो देखा, वो उसको जान ही देनी पड़ती। तो आप समझो कि ये एक ऐसा इतनी सी थिन लाइन है जिसको हमें डील करना होता है। तो हमें नहीं पता ना कि अभी तो डीप फेक का जमाना है, तो आप क्या कर लोगे डीप फेक में? तो डीप फेक में हमारा जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है गौरव की एक इमेज बना दी एक स्टूडेंट ने। बात बता सर मैं तो टेस्टिंग कर रहा था। तो बोले सर मैं टेस्ट करते 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 ऐसा हो गया। तो भाई तू कुछ और बना देता। तो हम कुछ कर नहीं सकते इस डिवाइस का। आपके लिए जितनी सुविधाएं हैं, आपने इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? गूगल का एंड्रॉइड। आपने 10 रुपए दिए एंड्रॉइड को यूज करने के लिए? नहीं। गूगल यूज करने के लिए 10 रुपए दिए, फेसबुक के 10 रुपए, किसी चीज के 10 रुपए दिए, एक्सेप्ट डेटा रिचार्ज। तो बाकी सब अपने फूफा है, फ्री में दे रहे हैं। सो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ इट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। वो आपको ही बेच रहा है। भाई गूगल की क्या एप्लीकेशन है? अभी गूगल मैप सबने देखे होंगे। देयर इज फैसिलिटी इन गूगल कॉल्ड स्ट्रीट व्यू। देखा किसी ने? क्या देखा उसमें? स्ट्रीट व्यू में क्या देखता है? स्ट्रीट व्यू में जब आप इधर सिविल लाइंस में जाओगे तो सिविल लाइन में कितने गेट हैं, और वहां के जो गेट है वो स्टील का है या लोहे का, वो भी दिखेगा। वॉल पे कलर क्या है ये भी दिखेगा, कलर भी दिख रहा है। कोई बिल्डिंग का फोटो तो उसमें जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ग्लो साइन लगे हुए हैं, वो किस कलर के हैं ये भी दिखेगा। तो ये फोटोग्राफ्स गूगल के पास कैसे पहुंचे? क्योंकि हम सबने कहीं ना कहीं सेल्फी लेके फोटो तो अपलोड किया है। तो गूगल ने सिंपली उस फोटो से हमें हटा दिया, पीछे का बैकग्राउंड यूज कर लिया उसने, और बैकग्राउंड यूज करके उसने एक इमेज बना ली। तो वो स्ट्रीट व्यू बना दिया उसने, आपको बिल्कुल लाइव दिख रहा है, ये बिल्डिंग ऐसी तो दिखती है। सो हम तो भाई गूगल क्यों हमें सब फ्री में दे रहा है? क्योंकि उसको डेटा चाहिए हमसे। दैट इज द रीजन। वो तो 15 GB फ्री है, हम भी होशियार हैं, हमने 2 अकाउंट बना लिए, 10 अकाउंट बना लिए। सो गूगल बेवकूफ नहीं है, गूगल चाहता है कि आप ऐसा करें।
लेकिन जो ये मगजमारी नहीं करना चाहता वो गूगल को पैसे दे देता है। तो गूगल का बिजनेस भी यार आप समझो कि कंटिन्यूसली मेटा अभी अमेरिका को कंट्रोल करता है और वो दूसरा ट्विटर है। एलन मस्क का रोल तो आप देख रहे हो ना अमेरिका की राजनीति में। ही इज इन द पोजीशन टू कंटेस्ट फॉर नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जस्ट वो ट्विटर का मालिक है, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन बेच के। हम तो ट्विटर पे भी 10 रुपए नहीं दे रहे। तो ये हमें सोचना है कि हमें उन्हें डेटा देना है या नहीं देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप साधु संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने फोटोग्राफ्स मत दो। इस फोन में आप रोक ही नहीं सकते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 3500 का DSLR कैमरा ले लो, या फिर इससे ऐसे फोटो लो जो वो मैडम उनके पास एक वीडियो कैमरा है, सो वो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन उसके सस्ते एडिशन 3500 से चालू होते हैं। तो आपको लग रहा है कि मेरे को फैमिली, घर की महिलाओं के, बच्चों के फोटोग्राफ्स लेने हैं, तो मैं परसों सुनील भारती मित्तल का इंटरव्यू देख रहा था। सुनील भारती मित्तल ओनर ऑफ एयरटेल, ही सेज कि उनका दुबई का जो उनका ऑफिस है, दुबई का जो उनका फाइनेंस मैनेजर है, उन्होंने उनको कॉल किया और एग्जैक्टली सुनील भारती मित्तल की आवाज में बोला कि यार इतने पैसे ये जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है साउथ अफ्रीका में, इसके लिए ट्रांसफर कर दो। बोले इतना बड़ा अमाउंट सर एकदम से मेरे को बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मेरे को डाउट हुआ कि ये सर की आवाज है, नहीं है। तो आई एम अबाउट टू ट्रांसफर, बट मैंने इंक्वायर किया कि सर कहाँ पे है। मेरे पीए को फोन लगाया कि सर कहाँ पे है, तो सर यहाँ पे है। तो एक मिनट सर से मेरे को फिर से बात करनी है। जब उस जो उनके फाइनेंस मैनेजर ने सर के पीए को फिर से लगा के फिर से सुनील भारती मित्तल से कनेक्ट हुए, तो ये वाला सुनील भारती मित्तल बोलता नहीं मैंने तो बोला ही नहीं तेरे को ऐसा। तो सर ये रिकॉर्डिंग सुनो, तो उसने रिकॉर्डिंग सुना दी सुनील भारती मित्तल को, तो ही इज आल्सो शॉक्ड कि यार ये तो एग्जैक्टली मेरी आवाज है, और जिस टोन में, जिस लहजे में मैं बोलता हूँ वो लहजा यूज किया है। तो ये फोन यूज करना उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन जो फ्री एप्स, सेल्फी कैमरा, ब्यूटीफाई, ये अब आपको लगता है कि आज नहाए नहीं है, इससे फोटो ले लो, एकदम नहाए जरूरत दिखाएगा अपने को। वैसी एप्स बंद कर दो आप। सी गूगल मेरी प्रेजेंटेशन में भी कहीं है, मैं प्रेजेंटेशन पे जा ही नहीं रहा। सो आप मैम से बोलिएगा वो आप प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा, खुद घर बैठ के देखिएगा। लेकिन गूगल दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। क्यों है? क्योंकि उसके पास बिना मांगे उसको, है ना, मतलब वो नहीं बिन मांगे मोती मिले, वो है गूगल के साथ। तो हम सब अपनी चॉइस से, स्वेच्छा से उसको डेटा दे रहे हैं। अच्छा, आपने कुछ लोगों ने ऐसे कैप्चा देखे क्या जिसमें पूछता है कि यहाँ पे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्ट्रीट लाइट है, लड़का है, लड़की है। सो हमको क्या लगता है हम कैप्चा बना रहे हैं। ये कंपनीज बैकग्राउंड में ये वेरीफाई कर रही है कि जेन्युइनली इसमें लड़की है या नहीं है, जेन्युइनली इसमें स्ट्रीट लाइट है या नहीं है। हम अलग एंगल से सोच रहे हैं कि हम तो कैप्चा दे रहे हैं, बट एक्चुअली उन्होंने हम लोगों से पूछ लिया कि इसमें जो हमने पूछा इसमें चेयर थी कि नहीं थी। तो इन दिस वे दे आर अपडेटिंग इन देयर सिस्टम। तो हमारा एंगल अलग है इंफॉर्मेशन को देखने का, उनका एंगल अलग है। उन्होंने हमसे ही वो काम करवा लिया, और जब 10 लोगों ने एग्जैक्टली बोल दिया हाँ इसमें ये था, तो वो भी मान लेगा हाँ इसमें है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको एक बता दिया, SMS OTP का। अब नीचे जरा माइक पे आना। उसमें माइक होगा कहीं पे, माइक्रोफोन या माइक। जिन लोगों ने अभी तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया था वो इस बात को सीरियसली ले। आप इसको घर जाके प्रैक्टिकल कर लेना। आप सबको माइक की परमिशन हटा दो, फेसबुक को, इंस्टाग्राम सबको हटा दो। व्हाट्सएप को इसलिए रहने दो क्योंकि उससे आप कॉलिंग करते हो। लेकिन फेसबुक इतना होशियार, उसने कहा कि लोगों को पता है कि लोग फेसबुक को माइक की परमिशन नहीं देंगे, लेकिन व्हाट्सएप को तो देंगे क्योंकि कॉल करना है। तो सारा व्हाट्सएप भी खरीद लो। अब तो देंगे लोग हमें डेटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंफॉर्मेशन डेटा चाहिए हमें, कैसे भी डेटा चाहिए। तो आपको जब चाहिए तब माइक की परमिशन दे दो, जब नहीं चाहिए तब मत दो उसको।
तो ये सारी चीजें आज आप एक बार वेरीफाई करो। उसमें दूसरा फाइल्स है जो आपकी गैलरी है, उसको देखो कितने सारे, मतलब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, आप कभी महसूस करिएगा अपने फोन को 5G बंद कर दीजिएगा और 4G चलाइएगा, बिकॉज 5G में अभी सब लोग अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, अभी नहीं घर जाके, लेकिन 4G में सबके पास लिमिटेड डेटा है, 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB। आप 4G चलाइएगा 2 दिन और सुबह उठ के चेक करिएगा, तो आप देखेंगे आप तो सुबह सो के उठो आपके फोन से 200-250 GB डेटा खत्म हो चुका है। किसी ने महसूस किया? तो 200-250 GB कहां गया? सिस्टम ने यूज किया। सिस्टम 250 GB में, मतलब MB में क्या करा उसने? फोन कौन सी कंपनी का है? अभी मतलब मैं यहाँ किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं जो उसके बारे में मार्केटिंग करूंगा, ना मैं किसी को ये बोलूंगा कि आप एप्पल का फोन खरीदो, मैं भी एंड्रॉइड ही रखूंगा, क्योंकि बीइंग इंजीनियर्स हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें रिसर्च करनी है। सो आप इस डिवाइस पे भी रिसर्च करो, बट यू आर नॉट अलाउड टू डू रिसर्च ऑन आईफोन्स, वो लिमिटेड है। आईफोन में जो एप्पल है वो बोलता सारा डेटा मैं ही रखूंगा, मेरा नाम कोई नहीं रखेगा, सब इंफॉर्मेशन मैं ही यूज करूंगा। एंड दिस इज द रीजन, मतलब कंटिन्यूअसली आप सोच रहे हो दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन पे मार्क जकरबर्ग चल रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उसका डेटा है, बेच रहा है इंफॉर्मेशन को। सो हम कॉमर्शियली फेसबुक को ऐड लगाते हैं, तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में, तो मैं कीवर्ड्स ढूंढता हूं, मैं ये कीवर्ड में बच्चों को बताना चाहता हूं कि बच्चे आए और ये वर्ड जब सर्च करेंगे तो मेरा ऐड पहले दिखेगा। सो आई पे ऑलमोस्ट 32 रुपीज पर क्लिक। सो 32 रुपीज पर क्लिक ये गूगल को दिया मैंने। अगर वो ऐड गूगल में किसी ने देखा तो गूगल ने पूरे पैसे रख लिए, लेकिन वो ऐड अगर गूगल ने फेसबुक पे लगाया, जैसे आपने शूज सर्च करो फेसबुक पे ऐड आ गया बाटा के शूज ले लो, तो आधा पैसा फिर वहां पे गूगल ने बाटा से, सॉरी फेसबुक पे लगाया था, तो आधा पैसा फेसबुक से शेयर कर लिया। तो इन दिस वे वो पैसा बना रहा है, हम लोग एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे रहे हैं, यूजर्स मिल रहे हैं जो ऐड देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके माइक की परमिशन है, इंफॉर्मेशन मिल रही ना। तो आप आज से ये कोशिश करो कि पहली बात तो इसमें ऐसी ऐप्स इंस्टॉल मत करो जिसकी आपको जरूरत ना हो। कभी कभी क्या होता है, अपन टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वो आपका डेटा तो एक्सेस कर रही है। मेरे फोन में ऐसी बहुत कम एप्लीकेशन होंगी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स को, एसएमएस को, गैलरी को, माइक को एक्सेस कर रही होगी। मैं ऐसी ऐप इंस्टॉल ही नहीं करता, क्योंकि मैं उसके बिना भी जिंदा हूं। लेकिन मेरी एक इंफॉर्मेशन अगर बाहर जाती है तो मैं वो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है। सो मैं जब डिफेंस में ट्रेनिंग लेने जाता हूं, डिफेंस का बहुत क्लियर है कि डिफेंस प्रोमाइसेस में यू आर नॉट अलाउड टू यूज स्मार्टफोन। तो आप बेसिक फोन लेके आओ, तो बेसिक फोन लेके जाना होता है, फिर काम करके आओ। ये एक एंगल बताया मैंने। दूसरा एंगल हमने सब रोक लिया है ना। अब मैं आपको एक दूसरा केस बताता हूँ कि एक मंदिर के बाहर एक फूल वाला है। फूल वाले का रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास मैसेज फोन आता है कि भैया मेरे अकाउंट से 12-12 हजार करके पैसे निकल रहे हैं। मेरे को ओटीपी आता है कि दिस इज द ओटीपी फॉर ट्रांजैक्शन, बट मैं ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहा हूं। मैंने उसको पूछा कि भाई कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल की हुई है? एनीडेस्क, टीमव्यूअर, नाम सुने ना आपने? जिसने नहीं सुने आज घर आके पढ़ना, एनीडेस्क, टीमव्यूअर। तो मैंने ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल करी हुई है क्या? बोले मेरे फोन में कोई भी ऐप नहीं है, मतलब मैं तो गेम्स भी नहीं खेलता, कोई ऐप ही नहीं मेरे फोन में। मैंने कहा फोन बंद कर दे। तो ये बताने तक उसके और मेरे उसमें उसके अकाउंट से 52,000 रुपीज निकल गए। अब मैं नेक्स्ट डे मंदिर पहुंचा तो मैंने उसका फोन देखा, मैंने फोन चालू किया, कोई एप्लीकेशन नहीं थी उसके फोन में जो डेटा निकाल रही हो। अभी कैसे निकला होगा? कोई सिम नहीं, सिम क्लोनिंग जो है ये जबरदस्ती ज्ञानी लोग बोल देते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है सिम क्लोनिंग। सो पूरा फोन उसका मैं
मैंने आधे घंटे स्कैन किया, स्कैन करने के बाद भी समझ में नहीं आया कि है क्या इसमें। एसएमएस की परमिशन, क्योंकि उसका Xiaomi का फोन था तो मैसेजिंग Xiaomi को परमिशन थी। फिर मैं गूगल कर रहा था, तब मेरे को नहीं पता चला कि Xiaomi इज एक्सेसिंग द एसएमएस, क्योंकि फोन MI का था। Xiaomi इज एक्सेसिंग द एसएमएस और Xiaomi के किसी एजेंट या किसी क्लाइंट ने ये काम किया है कि उसके एयरटेल पेमेंट्स बैंक से पैसे निकाले। ये उसकी नॉलेज के बिना अगर पैसे निकले ना, तो ये को बात ध्यान रखने वाली, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से अगर आपकी नॉलेज के बिना पैसा निकल गया तो कितना भी होगा, सो भी क्लाइंट को हमने 35 लाख रुपीस रिटर्न करा है। आपकी नॉलेज के बिना पैसा निकला है तो आपकी गलती नहीं है, आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन वो पैसा फोन पे, पेटीएम इनके थ्रू निकला तो उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी बैंक है उस बैंक के सबके डायरेक्ट क्यूआर है, वो क्यूआर यूज करके पेमेंट करें। क्यों यूज करना फोन पे, पेटीएम? भीम बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, भीम पे कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, सो दे इजीली एक्सेप्ट कि हाँ ये कुछ गलती है हमारे बैंक की, फिर पेमेंट कर, तो पैसा पूरा वापस मिलता है जहां आपने ओटीपी नहीं बताया हो। इसके केस में भी यही था। तो मैंने फट से Xiaomi की परमिशन हटाई और फिर ध्यान आया कि उसका एक स्क्रीनशॉट लेना था और रिपोर्ट करना था। तो फिर मैंने बहुत सारे चैनल्स पे रिपोर्ट भी किया उसको, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। सो आई सिंपली सजेस्ट कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने बजट के चक्कर में MI, Oppo, नाम सुनिएगा, MI, Oppo, Vivo, Redmi, OnePlus, 5 नाम लिए मैंने। ये पांचों नाम पे चाइनीज कंट्रोल है, मतलब गवर्नमेंट बोलती है हमको बेवकूफ है गवर्नमेंट खाली, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल, और इसके मैंने बहुत सारे केसेस देखे। तो आप जब अगली बार फोन लोगे तो सैमसंग का छोटा, और तो सैमसंग मेरे को कोई मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं देती, लेकिन सैमसंग का एक छोटा फोन ले लो, क्योंकि जो वीवो में फीचर आ रहा है वो आईफोन में फीचर आ रहा है 1 लाख के, वो वीवो 30,000 में फीचर दे रहा है। तो हमको लगता है अपन ये ले लेते हैं, बट जिसने कहा कि उसका डेटा एक्सेस हुआ, अब मैं उनसे बोलूंगा कि आप घर जाके जाना और किसी सैमसंग फोन में कंपेयर करना कि एक दिन में सुबह सुबह अपने आप कितना डेटा लगा और आपके MI, Oppo, Vivo, Realme और OnePlus में कितना डेटा लगा सुबह, ये खुद कंपेयर करना, फिर रिजल्ट खुद को बताना। तो आप ऐसे महसूस कर पाओगे कि ये डिफरेंस है। तो आप चेक करोगे कि सैमसंग में नहीं लगेगा डेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैमसंग पे करके एक फैसिलिटी है, यूज की है किसी ने? सैमसंग पे। तो आईफोन में भी एक फैसिलिटी है कॉल्ड आईफोन पे, आईफोन वॉलेट करके। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईफोन वॉलेट को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि तुम पेमेंट कर सकते हो। मैं सैमसंग में सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करता हूं और मेरा कार्ड आ जाएगा। ओके, तो मेरा कार्ड आ गया, इस कार्ड पे मैं कहीं पे भी जाके टच करूंगा और मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ने सैमसंग पे को अलाउ किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने उनके सिस्टम को ट्रेस किया और समझा कि नहीं, ये हमारे कार्ड्स की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी स्टोर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अगले मर्चेंट तक पहुंचा रहा है, कोई स्टोर नहीं कर रहा है। और जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो भी मास्क करके स्टोर की हुई है। तब जाके उन्होंने सैमसंग पे को अलाउ किया। तो हाईली सेफ मीडिया है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं भूल जाऊंगा इसलिए बीच में बात चेंज करके दूसरी बात बोल रहा हूँ कि अभी एक नया इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, किसी ने देखा उसको बारे में? सो आज आप घर जाके सबको गूगल करना है। आप सोचो कि जैसे मेरा कोई इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं किसी कॉल लगाते कि मैं यहां से बोल रहा हूं, तो आपको क्या महसूस होता है कि नंबर कहां से गया? कहां से गया होगा नंबर? बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, उनके ऊपर अपन एंट्री करते हैं घुसते टाइम, लोग आते हैं वहां पे जो गेट पे खड़ा हो तो उसको मैंने 200 रुपए दिए, पूरे रजिस्टर के मैंने फोटोग्राफ खींचे, मैं घर चला गया। तो ये एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा भारी भरकम तरीका, बहुत मेहनत करने वाला तरीका है। सो बेस्ट तरीका क्या है कि कोई कंपनी है ड्रॉपबॉक्स जैसी, गोडेडी जैसी, इनसे डेटा परचेज कर लो, हमें सारे कस्टमर्स का डेटा मिल जाएगा। सो इंटरनेट पे मेरी एक फर्जी आइडेंटिटी भी है
मैंने इंटेंशनली बना के रखा है कि जहां पे डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी नहीं है, मैं फर्जी आइडेंटिटी डाल के रखी सब जगह और मैं उसी को यूज कर रहा हूं। तो GoDaddy में मेरा अकाउंट है, मैंने उसमें अपना एक अजीब सा नाम डाल के रखा हुआ है। तो मेरे को जब कोई कस्टमर कोई कॉल करता है, मेरे को जब मांगीलाल जी बोल रहे हैं, मैं समझ जाता हूँ GoDaddy से डेटा बिका है और मेरे पास फोन आया है। तो मैं ऐसे अलग भाई मैं असली ना मेरा सिर्फ फोन नंबर उनको सही बताना, उसके अलावा मैं सारी चीजें गलत बताऊं तो क्या फर्क पड़ रहा है? पिज्जा हट है, पिज्जा हट का 2019 में सारा डेटा लीक हुआ, एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ, लिंक्डइन का सारा डेटा लीक हुआ, तो मैं क्यों अपना डेटा चुनवाऊं? मैं क्यों अपना असली नाम बताऊं? तो वो पॉइंट है, आपको उस एंगल से सोचना पड़ेगा कि कितनी चोरी हो रही है। अब जैसे GoDaddy ने मेरा डेटा बेच दिया, मैं श्योर हूं GoDaddy ने ही बेचा है, क्योंकि मेरा मांगीलाल नाम कहीं है ही नहीं, सिर्फ GoDaddy पे है। तो क्या हुआ? इसके लिए मैं GoDaddy पे कोई पेनल्टी कर सकता हूं? नहीं कर सकता, लेकिन यूरोप कर सकता है। यूरोप का एक एक्ट है कॉल्ड GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। अभी जरा गूगल करना आप लोग कि GDPR की पेनल्टी कितनी है। GDPR पेनल्टी अमाउंट, एग्जैक्टली ये लिखना गूगल पे, GDPR पेनल्टी अमाउंट, और बताओ मुझे कितनी पेनल्टी? €250 करोड़ रुपए। अभी आप समझना कि यही काम GoDaddy ने या पिज्जा हट ने यूरोप में किया ना, तो 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरनी है उसको, कंपनी बिक जाएगी। कभी जीवन में सोचेगा GoDaddy ऐसा करने का? नहीं सोचेगा। इट इज नॉट 250 करोड़ रुपए, इट इज 20 मिलियन यूरोस और 3% एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। 3% एंड 4%। सो 4% ग्लोबल टर्नओवर, ग्लोबल यानी कि TCS इंडिया में भी है, TCS सिंगापुर में, TCS यूरोप में भी है। सो जो आपका ग्लोबल टर्नओवर है TCS का, उतनी पेनल्टी लगती है। यूरोप में आज कोई कंपनी बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहती जो इस टाइप का काम कर रही है, सिर्फ इसी डर से। इंडिया में ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। अभी ये कानून ड्राफ्ट में आ गया है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, mygov.in पे। इसको बोलते हैं DPDP 2025, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया जो भी लेके आया है, जिसमें 250 करोड़ की पेनल्टी का प्रावधान है। अब करेंगे इंडिया में भी, अगर प्रूव हो गया तो इंडिया में भी 250 करोड़ की पेनल्टी। अभी तक तो 1000 की पेनल्टी भी नहीं थी। वो आते थे इंटरनेट पे और बोलते थे कि हमारा डेटा, एयर इंडिया का डेटा है, वो सारे कस्टमर्स का डेटा है। अगर आप जैसे किसी ने भी एयर इंडिया से फ्लाइट कभी ट्रैवल किया तो मेरे पास उसका डेटा है, मैं बता सकता हूँ, आपका नाम, आपके घर का नाम, पिताजी का नाम, सब बता सकता हूँ मैं। और इंटरनेट पे कोई भी चेक कर सकता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां पे डार्क वेब पे पड़ा हुआ एक्सेस कर सकता है। रिसेंटली 2 महीने पहले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार सुना ना? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसने डेटा भेज दिया एक बंदे को। बाद में आके उसने पब्लिक में स्टेटमेंट दिया कि सर वो हमारी कंपनी में हैकिंग हो गई, हमने नहीं किया। जिसने डेटा ये पब्लिक करा उसने YouTube वीडियोस डाल दिए, WhatsApp के स्क्रीनशॉट डाल दिए कि ये डेटा इसी ने बेचा है। अब ये स्क्रीनशॉट अब मिलेंगे तो 250 करोड़ की पेनल्टी है, बंद होगी स्टार, डाउन है। सो DPDP जो 2025 एक्ट है, इसको आप गूगल करो और mygov.in करके वेबसाइट है, इसका ड्राफ्ट हमारा अवेलेबल है। देखो जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना तब तक आप सीखोगे नहीं। सो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। mygov.in बोलता है कि आप हमारी वेबसाइट पे आओ और आके हमें सजेशन दो, कि आप हमें सजेशन दो और बताओ कि क्या है। मैं इसका जो गजेट है वो मैं प्रिंसिपल मैम को भेज देता हूँ, आप प्रिंसिपल मैम जो बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आप शेयर कर दीजिएगा। तो बेसिकली पूरा उसमें एक्ट है, पहले हिंदी में है, गजेट जो भी होता है वो पहले हिंदी में होता है, बाद में इंग्लिश में होता है। हिंदी समझ में आएगी हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश समझ में आएगी इंग्लिश पढ़ेगा। तो गजेट जो है मैं मैडम को भेज देता हूँ, मैंने मैडम को भेज दिया। सो इसको आप पढ़ें, आप इसको पढ़ें कि अब हमारे पास क्या साइबर से रिलेटेड प्रावधान आ गए नए,
कि हम कहां पे क्या कंप्लेंट कर सकते हैं। सो अवेयरनेस इज द की। आपको अवेयर होना है, आप जाओ, आप उसको पढ़ो, आप सजेशन 18 जनवरी तक आप सजेशन दे सकते हो। 18 जनवरी, फरवरी नहीं जनवरी, ये अभी हो गया फरवरी, ये जनवरी था। 3 जनवरी से था। हाँ, तो ये जनवरी था, तो उन्होंने 1 महीना और बढ़ा दिया क्योंकि उस सजेशन के बाद वो उसको लॉन्च करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल सजेशन, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, आपकी बात शुड बी लॉजिकल, एक्सप्लेनेशन भी क्लियर होना चाहिए, तो आप अपने आप को यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे मोबाइल में मैंने आपसे बात की कि आपको OTP पे ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको ध्यान दी कि बताया कि फोन आप भले घटिया फोन खरीदो, लेकिन कोशिश करो कि चाइनीज फोन्स को अवॉइड करो। एक्चुअली वो डेटा लेके जाते हैं। मतलब मेरे पास बहुत सारे केसेस है। आगर मालवा की महिला है, गांव की है, और उनके फोटो इंटरनेट पे आ गए। सो उनके हस्बैंड ने बहुत मारा उनको, सबने, फैमिली, खानदान, ससुराल में सबने मारा उस महिला को। तो वो महिला ने पुलिस को बताया कि मैं कहीं घर से बाहर जाती नहीं, इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है मेरे इस फोन पे, अभी तो कुछ दिनों से मैं फोटो सोशल मीडिया पे तो जा ही नहीं सकते। लोग कैसा करते हैं कि उन्होंने फोटो लिया और डिलीट कर दिया। मैंने फोटो लिया और मैं डिलीट कर देता हूँ। सो मैंने फोटो लिया और मैं इस फोटो को डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होगा? डिलीट हो गया? नहीं हुआ। क्यों? कहाँ गया? ट्रैश में गया, बिन में गया। मैं इस फोटो को ट्रैश या बिन से डिलीट कर देता हूँ। आप आपके फोन से फोटोग्राफ लो, ट्रैश या बिन से डिलीट करो, मेरे को 10,000 रुपए दो, मैं वो फोटो फिर से दूंगा आपको। कैसे दूंगा? मैंने एक चीज आपको बोली कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इफ इट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। ये पहला आज का था। दूसरा, डेटा कैन नाइदर बी डिलीटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डेटा अजर अमर अपन ने बुक्स में भी पढ़ा होगा। वो अगर मैंने एक बार ले लिया, वो कहीं नहीं जाएगा, वो है मेरे फोन में। एक पेनड्राइव है 8 GB की, उसमें फुल डेटा भरा है, अपन ने फॉर्मेट कर दिया, क्या हुआ? फॉर्मेट हो गई, हमें लगा डेटा खाली हो गया। सो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1999 में इंटरनेट कैफे चलाता था, मतलब जॉब करता था कैफे में। तो कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी जॉब कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ से खुजली हो रही थी, तो मैं रिसर्च करने लगा। सो वो पेनड्राइव का सारा डेटा मैंने रिट्रीव कर लिया। तो कोई मेरे को पेनड्राइव देके जाता था कि भाई इसमें ये डेटा डाल देना, मैं ठीक है कल कर दूंगा। अभी शाम को बैठ के उस पेनड्राइव के ऊपर एक इंटरनेट पे फ्री यूटिलिटी आती है कॉल्ड रिकोवा। नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कितना इजी है करना। सो मैं रिकोवा चलाता, इंस्टॉल करता, पेनड्राइव से सारा डेटा रिकवर कर लेता। तो पहले जमाने में जिसके पास पेनड्राइव होती थी वो पापी आदमी भी होता था, बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते थे उसके पेनड्राइव में। फिर नेक्स्ट डे पहले तो उसको ब्लैकमेल करता था कि आज पार्टी कहाँ पे। सो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझोगे मैं वो कुछ भी समझो मेरे बारे में, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि इट इज वेरी इजी। सिर्फ आपको छोटी सी कुछ ट्रिक्स, टूल्स की जरूरत है। सो मैंने पेनड्राइव ली, आज का पार्टी का कोटा हो गया, उसको जो काम करना था पेनड्राइव में वो भी कर दिया, उसको समझाया कि बेटा फॉर्मेट करने से कभी डेटा डिलीट नहीं होता। अगर आपको करना है, मैं तो बहुत छोटा था, 12th क्लास में था, तो कैसा है कि डेटा अगर आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पेनड्राइव में एक बार आपने डाल दिया तो इट इज नाइदर बी डिलीटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी हटाना है तो क्या करना है? हटाना है। इनको दूसरे नंबर से फोन लगाऊंगा कि आपका ये डेटा मिला है मेरे को, तो 50,000 रुपए चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस भोपाल में है। एक छोटी बच्ची है, मतलब वो प्रोबेबली 18 साल की भी नहीं हुई थी, उसने फोन बेचा, पापा से पूछ के बेचा होगा ऑब्वियसली, कि लोग फोन बेच देते हैं और डेटा रिकवर करते हैं। सो इट इज वेरी इजी। इसीलिए नॉर्म बताया मैं सॉफ्टवेयर रिकवर, आप कुछ भी रिकवर कर सकते हो। अभी अगर आपको फोन, मोबाइल, लैपटॉप बेचना है तो कैसे बेचोगे?
रीसेट करो, फिर से कंप्यूटर से कनेक्ट करो। सो हमारी जेब में डेबिट कार्ड रखे होंगे बहुत सारे, या फिर आपके वो वॉलेट में रखे होंगे। कॉलेज अगर आप लोग वो वॉलेट का कार्ड आप उसमें स्टोर कर सकते हो, एक तरीका बचने का।